الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة صلى الله عليه محمد وآله عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر آج شروع ہوگی کہ خطبہ شعبانیہ کا تعارف۔ اس پر ہم بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، چونکہ اس سے پہلے کے خطبے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے ماہ مبارک رمضان آنے سے پہلے کچھ چیزوں کی آمادگی کے لیے اپنے بیانات دیے ہیں، باتیں کہی ہیں، اور مومنین کے لیے ہدایت کے راستے کو ہموار کیا ہے۔ اور اس خطبہ شعبانیہ میں اگر آپ کے اذہان عالیہ تک بات پہنچا سکا تو تقریباً 28 موضوعات ہیں، 28 پوائنٹس ہیں جس پر پیغمبر نے گفتگو کی ہے۔ کیونکہ آج ضرورت ہے کہ ہم خطبہ شعبانیہ پر ڈسکس کریں، گفتگو کریں، بحث کریں، تاکہ عوام الناس کو، لوگوں کو، مومنین کو بہت سارے فوائد حاصل ہو سکیں۔ پیغمبر کہتے ہیں ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ علیہ السلام والرحمہ والمغفرہ، کہتے ہیں کہ آپ کی طرف یقینی طور پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، ایک ایسا ماہ آنے والا ہے جو اپنے ساتھ برکتوں کو لیے ہے، جو اپنے ساتھ رحمتوں کو لیے ہے، جو اپنے ساتھ مغفرت کو لیے ہوئے ہیں۔ یہیں سے پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ کے خطبے کو ارشاد کیا اور شروعات کی، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرہ، کہ آپ کی طرف یہ رحمت مغفرت لیے ہوئے مہینہ آ رہا ہے۔ کاش اس مہینے کو ہم لوگ سمجھ سکتے، کیونکہ ہم نے ماہ رمضان کو ماہ عبادت تو جانا ہے، لیکن کچھ ہمارے یہاں نادان ایسے ہیں کہ پیغمبر جس چیز کو رحمت اور مغفرت اور برکت سے تشریح دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہیں پر کچھ نادان افراد ایسے ہیں جو اس مہینے پر آنے کے بعد ان کے اسٹیٹس کو اگر آپ چیک کیجئے تو وہ یہی ہے کہ غم کی علامت سے شروع کر رہے ہیں، کہ جیسے عید کا چاند ہوا تو اب زینب تیری یتیمی کے دن قریب ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے میرا، کیا وقت سے پہلے کسی کا شوق مناؤ گے؟ کیا وقت سے پہلے ہر چیز انجام دے لو گے؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے کاپی پیسٹ کرنے والے اس قسم کے افراد پائے جاتے ہیں کہ جن کو اس مہینے کی نہ عظمت کا اندازہ ہے، نہ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہے، نہ یہ مہینہ جو اپنے اندر شرفوں کو، اپنے اندر عظمتوں کو، اپنے اندر اہمیتوں کو، اپنے اندر برکت کو، رحمت کو، اپنے اندر مغفرت کو
लिए हुए है और छिपाए हुए है। तो अगर इसी चीज को आप मुलाहिजा कीजिए और देखिए तो बहुत सारी चीजें आपके जहन में आएगी कि हमारा नजरिया कहीं और चल रहा है और पैगंबर और आले पैगंबर खुद अल्लाह हमें कुछ और बताना और सिखाना चाह रहा है। क्योंकि ये माह मुबारक रमजान है। रमजान इसीलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ने गुनाह के खत्म कर देने की सलाहियत को रखा है। शैतान कैद हो जाता है लेकिन शैतान के कारंदे कैद नहीं होते। अल्लाह ने शैतान को कैद तो कर दिया लेकिन उसके कारंदों को, उसके हामियों और मवालियों को, उसके चाहने वालों को ये कैद नहीं हुए। अब ये कैद नहीं हुए, जाहिर सी बात है अगर सरगना पकड़ लिया जाए और कारंदे रहे तो कारंदे अपना काम कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, अंजाम देते रहते हैं। यही वजह है कि माह मुबारक रमजान में आपको बहुत सारे अफराद ऐसे नजर आएंगे जो इस माह की अहमियत को कम करते नजर आएंगे, जबकि खुतबा शाबानिया खुद बयान कर रहा है, पैगंबर कह रहे अय्युहन्नास, ए लोगो, कद अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति व रहमा वल मग़फ़िरा, कि तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे पास एक ऐसा महीना आने वाला है जो रहमत, बरकत, अजमत लेकर के आ रहा है, मग़फ़िरत को लेकर के आ रहा है। और इस महीने को हम जब मनाना चाह रहे हैं तो कैसे मनाना चाह रहे हैं? वो इतने आगे कि यहां पर पहले रमजान से लेकर के 18 रमजान तक की जो फजीलतें हैं उसको हम हासिल करना नहीं चाह रहे हैं भाई। जबकि गम के अय्याम हैं, अपनी जगह पर हैं। हम शबे मनाते हैं, 3 दिन का शोक मनाते हैं, 3 दिन की बातें मनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे दरमियान हैं और ये सारी चीजें यानी हमारे पास हैं। अगर आप जरा सा मुलाहिजा कीजिए और देखिए, इससे वो ज़हनियत और मेंटालिटी इंसान पैदा करना चाहता है, इंसान बनाना चाहता है कि देखो ऐ हजरत इंसान, यानी हम अपने आप को स्पेशल फील करवा रहे हैं क्योंकि अल्लाह स्पेशल महीना पेश कर रहा है। तो वो स्पेशल में भी स्पेशल, वीआईपी में वीवीआईपी अपने आप को वो पेश करना चाहते हैं क्योंकि उनकी फिक्रें जमाने से आगे चल रही हैं। इसीलिए जब ईद मनाना होता है तो गम मनाने लगते हैं, जब गम मनाना होता है तो अय्याम फातिमिया में भी शादी ब्याह कर लेते। सोचिए आप कितने आगे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ क्या है पाई जाती। मेरे अजीजों, जितना इस्लाम ने आपको दिया है, जितना पैगंबर ने आपको दिया है, जितना पैगंबर की तालीमात ने, कुरान ने हमारे हवाले किया, हम उतना ही ले, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। जितना तालीमात पैगंबर और आले पैगंबर ने हमें दिया है, हम उतना ही हासिल करने की कोशिश करें। और जब इतना हम हासिल कर लेंगे तो समझ जाइए आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्यों? इसलिए कि माह रजब गुजारा हमने, माह शाबान गुजारा हमने माह रमजान की आमादगी की। तो ये जो महीना है माह रजब मौला कायनात का महीना, माह शाबान यानी रसूलुल्लाह का महीना, माह रमजान यानी खुदा का महीना, यानी हम इन महीनों में क्या करना चाह रहे हैं? आमादगी करना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं कि हम वहां से चले जहां से अली इब्न अबी तालिब चले थे। के माह से गुजरते हुए हम लोग चले, माह रमजान आया। तो रमजान में हम बहुत सारे कारहाए खैर अंजाम दे सकते हैं। सबसे पहली चीज यानी कोशिश कीजिए कि वाजिबात तर्क ना हो। वाजिबात से मुराद यानी अगर बालिग आकिल हैं और शरायत अपनी जगह पर पाए जा रहे हैं, यानी इंसान मुसाफिर नहीं है, इंसान मरीज नहीं है, इंसान बहुत ज्यादा ज़ईफ नहीं है, इंसान को प्यास की तृष्णगी या प्यास का तड़का लगता नहीं है, आखिर बहुत सारी चीजें,
तो ऐसे अफराद के ऊपर या डॉक्टरों ने जिसको मना कर दिया है कि साहब आप दवा खाएंगे ये होगा इला आखिर, तो कुछ लोगों को तो छूट है, लेकिन छूट के साथ फिदिया भी है, यानी एक रोजे के बदले 3 पाव अनाज ये क्या करेंगे, अदा करेंगे। और उसके बाद आइंदा साल तक अगर ये सेहतयाब हो जाते हैं तो इनके ऊपर रोजे की कज़ा रखना क्या है, वाजिब है। तो जो चीज हम पर वाजिबात में से है कोशिश करें उसको अदा करने की। हम लोग लाड प्यार में अपने बच्चों को बच्चियों को अरे ये बहुत कमज़ीन है, ये तो, जबकि शरीयत हमसे और आपके से कहीं ज्यादा वो देख रही है कि 9 साल का बच्चा अगर बच्ची हो गई है तो उसके ऊपर रोजा क्या है, वाजिब है, फर्ज है। नमाज क्या है, फर्ज है। लेकिन हम लाड प्यार में कहते हैं अरे अभी बच्ची ही तो है, कितनी साल, 10 ही साल की तो है, अभी उसको रोजा वाजिब नहीं, ये रख नहीं पाएंगे। जबकि हकीकत यह है, शरीयत क्या कहना चाहती है, शरीयत यहीं से उसको मजबूत बनाना चाहती है। शरीयत ने वो तमाम चीजें उसके अंदर रखे हुए हैं जो उसके अंदर सलाहियतें पाई जाती हैं। तो जब सलाहियत पाई जाती है तो फिर आप अल्लाह के नाम से जो उसने फर्ज कर रखा है आप रोजा रखिए, तो समझ जाइएगा कि अगर हिम्मत मर्दा होगी तो मदद खुदा होगी। आप अपने विल पावर को मेंटेन कीजिए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब ये थोड़ा सा मौसम सर्दियों वाला है, वरना हम लोगों ने तो गर्मियों के मई जून जुलाई में भी रोजे रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अफराद हैं जो रखते आए हैं। हमारे बच्चे जो इस वक्त नौजवान हैं इन्होंने रोजे रखे और रख रहे हैं। हमारे यहाँ तादाद ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, रोजेदारों की, नमाजियों की तादाद हमारे यहाँ ज्यादा है। एक सलवा पढ़िए कम से बहरहाल जो बातें मैं अर्ज कर रहा था कि जब ये महीना बरकत लेकर के आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, इस बरकत का इस्तेमाल आना चाहिए। बरकत का मतलब सिर्फ अफ्तारी में बरकत नहीं है कि साहब मौलाना साहब को रंग बिरंगी अनवा काम पहुंच जाए, अफ्तार पहुंच जाए तो कहेंगे हाँ भाई सफेद कॉलोनी में अफ्तार बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं है। अगर मोहब्बत से कोई एक खजूर ला करके दे देगा वही मेरे लिए बहुत है। क्यों? इसलिए कि ये भी एक रहमत है, क्योंकि आज के जमाने में कौन किससे सीधे मुंह बात करता है। जब इंसान अल्लाह से नाराज और बैठ जाता है तो बंदों की क्या बिसात और औकात है। सोचिए जरा सा, जब इंसान अल्लाह से नाराज हो जाता है, हमारे समाज में हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन आप जरा सा गौर कीजिए, हम पिनक गए अल्लाह से कि आप तो रोजा रखेंगे नहीं, आप तो नमाज पढ़ेंगे नहीं। अल्लाह के बंदे टकरा किससे रहा है? इबादत करेगा अपने लिए, रोजा रखेगा अपने लिए, नमाज पढ़ेगा अपने लिए। अगर तू इबादत नहीं करेगा तो अल्लाह के खुदाई में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तू रोजा नहीं रखेगा, अल्लाह की खुदाई में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर तू रोजा रख देगा तो हो सकता है तेरी लाइफ और बढ़ जाए, क्योंकि रोजा रखने से इंसान सेहतयाब होता है। सूमो कैसे हो, रोजा रखो ताकि सेहतयाब रहो। और हम क्या करते हैं, रोजे को छोड़ देते हैं सेहतयाब रहने के लिए। कितना अच्छा फार्मूला है। तो खुदा का बनाया हुआ निजाम और है और बंदों का बनाया हुआ निजाम और है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए वाजिबात को अदा करने की। कोशिश कीजिए, नमाज सभी पढ़ते हैं, लेकिन माह रमजान में कोशिश कीजिए मस्जिदों को आबाद कीजिए, मस्जिदों को रौनक बख्शिए, मस्जिदों को वहां तक लेकर के जाइए जहां तक मस्जिदें अल्लाह का घर है, किसी और का घर नहीं है। क्योंकि जिस खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया उसी ने कहा अगर जमीन पर हमारा कोई घर है तो वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद है। और कितने शयातीन ऐसे हैं जो मस्जिदों से टकराते हैं, कितने शयातीन ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि साहब अगर मैं सजदा करने से रोक दूंगा तो खुदा की खुदाई में कोई फर्क या पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा, या मोमिन को अजियत दूंगा
اللہ کے बंदे सजदा जिसका कर रहे हैं टकरा तो उससे रहा है, इसलिए कि उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, और खुदा के यहाँ लाठी में आवाज भी नहीं होती है। समझ में आ रहा है? खुदा एक मतलब चाहे तो एक हवा चला दे, पता नहीं कितनों का अता पता नाम निशान मिट जाएगा, लेकिन वो खुदा है, हम बंदे हैं। खुदा मसलहतों की बुनियाद पर काम करता है। हमारे और आपकी तरीके से नहीं नाराज होगा, चलो भाई इसका हुक्का पानी बंद कर दो, नहीं। खुदा के हम मसलहतें हैं, वो जानता है कि देखो तुम कितनी फिरौनियत तक जा सकते हो, देखिए तुम कितनी बेहयाई और बेगैरती तक जा सकते हो। कौन ऐसा इंसान है जो माह रमजान में इबादत करने से रोक सकता है? लेकिन है हमारे यहाँ मुसलमान ऐसे कि जिनको बहुत मजा आता है कि साहब अगर सजदा नहीं करने देंगे तो टक्कर किससे ले रहे हो? खुदा से। शर्म करो थोड़ा सा, कम से कम थोड़ी सी गैरत तो होनी चाहिए कि माह रमजान में लोग सोचते हैं इबादत करें और हम डटे हुए हैं इबादत ना करने में। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। ये जरा सा गौर कीजिएगा, क्यों पैगंबर कह रहे हैं ये महीना तुम्हारे पास आ रहा है, किस लिए? रहमत लेकर के, बरकत लेकर के, मग़फ़िरत लेकर के। और इसी महीने में अल्लाह ने शैतान को तो कैद कर दिया, लेकिन जो उसकी कारंदे है वो आज भी आजाद है, और वो वही काम कर रहे हैं कि साहब बाहर देखना, कुछ नमाज पढ़ने पाए ना पढ़ने पाए, देखना वीडियो बना लो, ये कर लो वो कर लो, ये क्या है? अल्लाह का डर है या नहीं है? ये मेरा सवाल मुसलमानों से, किसी और से नहीं है। ये मेरी बात मुसलमानों से है जो अपने आप को इबादत करने के लिए, अल्लाह के लिए तैयार रहते हैं। आप देखिए पूरा छलाछल भरा हुआ, कितने बेचारे नमाज नहीं पढ़ पाएंगे दुनिया के। समझ में आ रहा है? क्यों? इसलिए कि भाई जगह की तंगी, पहले नमाज हमारे यहाँ आधे मैदान तक जाता था, अब उसी को अगर सिलेक्ट करके आधा कर दिया जाए तो किसको रोका जाए, किसको मना किया जाए, किसको ये कहा जाए आप आइए आप ना आइए? किसी को नहीं रोका जा सकता। इबादत करने का हक सबको है, तो कम से कम मुसलमानों को तो इतना मुतवज्जे रहना चाहिए कि तुम किससे टक्कर ले रहे हो? खुदा से। और बहरहाल हर फिरौन के लिए एक मूसा होता है। देखते हैं फिरौनियत की रस्सी कहां तक जाती है, देखते हैं तुगयानी की रस्सी कहां तक जाती है, देखते हैं कितने, चूंकि बहुत सारे आए, फिरौन ने भी 70,000 बच्चों को सिर्फ इसलिए कत्ल किया था कि मूसा पैदा ना होने पाए, और अल्लाह ने मूसा को पैदा करके बता दिया कि तू सिर्फ जालिम और जाबिर बन सकता है, किसी को पैदा होने से रोक नहीं सकता। सलवात और पढ़िए। अब ऐसा इंसान अगर चाहे साहब हम इबादत करने और माह रमजान में बेहतरीन इबादत गुजार में शुमार हो, कतअन इबादत को उसके मुंह पर मार दिया जाएगा, क्योंकि पैगंबर कह रहे तुम्हारे लिए रहमत है, तुम्हारे लिए बरकत है, तुम्हारे लिए मग़फ़िरत है, और हम इसी को रहमत की जगह जहमत बना रहे हैं, बरकत की जगह लोगों को रोक रहे हैं। कंजूसी साहब अफ्तार ना भेज देना, इसलिए कि वहां बहुत ज्यादा लगता है। अरे किसके लिए भेज रहे हो? मौलाना गंदार के लिए मत भेजना। लेकिन अगर भेज रहे हो मोमिन के लिए, मस्जिद के लिए, तो अल्लाह के नाम पर भेज रहे हो, तो फिर अल्लाह के लिए होना चाहिए, किसी को दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। तो इबादत हम चाहे रोजे की हो मुकम्मल करें, नमाज हम पर वाजिब है तो हम उसको अदा करें। और उसके बाद पैगंबर और कहते हैं, जानते हैं ये जो महीना है माह रमजान, माह इबादत है, कितने अफराद ऐसे हैं जो आम दिनों में सवेरे नहीं उठते, लेकिन माह रमजान में लाउड स्पीकर के जरिए जगाया जा रहा है कि साहब आप उठ जाइए। ठीक है आप जगा रहे हैं, लेकिन हाईटेक जमाने में, इम्तिहान के जमाने में इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों की तालीम, बच्चों के लिए इल्म, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, जितने भी हैं हर बोर्ड का एग्जाम इस वक्त फाइनल चल रहा है, एनुअल, सही है। जब फाइनल चल रहा है तो हम मुसलमान हैं,
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میری وجہ سے کوئی بچہ بیمار ہو گیا، سر میں درد پیدا ہو، دیکھیں ہم اپنی بات کرتے ہیں، کسی غیر کی نہیں کہ اگر وہ بجاتے ہیں تو ہم کیوں نہ بجائیں، ہم بجاتے ہیں تو وہ کیوں نہ بجائیں، ایک مثال دے رہے ہیں، ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم خیال کر لیں، کیونکہ آج کے زمانے میں سب کے پاس موبائل ہے، یہ تو اس زمانے میں چلتا تھا جب زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، موبائلیں نہیں ہوتی تھیں، لوگوں کو ٹائم دیکھنے پتہ نہیں چلتا، تب لوگ بتاتے تھے اب اتنا ٹائم بچاؤ، اتنا ٹائم بچاؤ، اتنا ٹائم بچاؤ، اتنا، اس کا فائدہ ہوتا۔ لیکن آج کے زمانے میں زمانے کے حساب سے تبدیل، ہم یہ نہیں کہتے نہ بجائیے، سلو بجائیے، شروع کے وقت میں اٹھا دیے، لاسٹ کے وقت میں تو سب خود ہی اٹھ جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی یہ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک ہدایت دے رہا ہوں کہ جو اسلام کا اصلی پیغام یہی ہے کہ اب اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دیں گے۔ تو جب ہم اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ عبادت مانی جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آئے اور آنے کے بعد جب سجدہ کریں گے تبھی نماز کہلائے گی، نہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کر دیں گے تو یہ بھی عبادت کہلائے گی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر یعنی ہماری توجہات ہونی چاہیے، اور جب توجہات ہمارے ہوگی تب جا کر کے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا۔ تو خطبہ شعبانیہ کا اگر پہلے میسج نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے 3 باتیں کہی ہیں، سب سے پہلے 28 پوائنٹ ہیں جو پیغمبر نے ذکر کیے ہیں جس پر ہماری گفتگو ہوگی، لیکن ان میں سے یہ مہینہ برکت، رحمت، مغفرت لے کر کے آ رہا ہے، تو ہمیں ان 3 چیزوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور جب ہم ان 3 چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے، ان 3 چیزوں کا لحاظ کریں گے، تب جا کر کے اللہ کی نظر میں ہم عبادت گزار کہلائیں گے۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادتیں لے کر کے چلے اور فرشتے ہماری عبادتوں کو ہمارے منہ پر مار دے کہ جب تجھ سے بندے راضی نہیں ہو سکتے تو خدا کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر آج شروع ہوگی کہ رمضان اور وحدت امت، یعنی ماہ رمضان اور وحدت امت، یہ گفتگو رہے گی ہماری۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں، یہ جتنے ہمارے نابالغ بچے ہیں، جو بالغ نہیں ہیں، بچے 15 سال کے جو اندر ہیں، اگر یہ اپنی جگہ پر کسی مرد مومن کو، صرف میری گزارش ہے، اٹھا نہیں رہا ہوں، سمجھداری یہ ہے کہ اگر یہ اپنی جگہ پر کسی بزرگ کو نماز پڑھوا دیں گے تو اللہ اس کا ثواب ان کو کہیں زیادہ عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ بہرحال ماہ رمضان اور وحدت امت، اس پر ہماری گفتگو چلے گی۔ اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُوا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جو ہم نے ان
عنवान बनाया है कि देखें माह रमजान में हमें क्या करना चाहिए, हमें उम्मत वहदत का ख्याल रखना चाहिए। उम्मत वहदत किसे कहते हैं, यानी तमाम के तमाम फिरके, तमाम के तमाम अफराद, तमाम के तमाम मोमिनीन, यानी जो भी हैं, हमें क्या करना है, यानी इन सबको एक जगह पर मौका दीजिए ताकि वहदत बरकरार हो जाए। वहदत वहदत का मतलब, अगर थोड़ा सा जा बजा होइए, लेकिन लिहाज कीजिए ताकि जो बातें मैं पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच जाए। उम्मत वहदत का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मसलक छोड़ दें, हम अपने मजहब छोड़ दें, हम अपने दीन को छोड़ दें, हम अपने अकायद को छोड़ दें। उम्मत वहदत का मतलब यह है कि माह रमजान इबादत का मौका है, हर किसी को इबादत करने का वक्त और मौका दिया जाए। क्योंकि अगर हर किसी को इबादत करने का मौका दिया जाएगा तो ये है वहदत कि साहब जिसको जहां पर भी इबादत करना है इबादत करे। वरना आप जानते हैं हमारे यहाँ बराबर वाले मैदान में भी इबादत चल रही है या नहीं चल रही है। अभी कोई एक एप्लीकेशन दे दे तो आप देखिए, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं कि किसी को इबादत करने से रोक दे। लेकिन वो कैसे होंगे कि जो हमें इबादत करने से रोकवा रहे हो, रोक रहे हैं। ये मैं इसीलिए वो कर रहा हूं ताकि उम्मत का मतलब ये है कि भाई आप इबादत करें, आप अपनी जगह इबादत कीजिए, हम इबादत करें, हमें अपनी जगह इबादत करने दीजिए। क्योंकि बार बार ये कहा गया भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ही वालों को परेशानियां है जो आकर के कहते हैं साहब बाहर क्यों बिछे, बच्चे नहीं बैठ सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं। अल्लाह के बंदे सोचिए जरा सा, जहां पर इबादत करना चाहिए, जहां पर अल्लाह कह रहा है ये रहमत का महीना है, बरकत का महीना है, ऐसा महीना है, वैसा महीना है, रहमतों को लेकर के आ रहे हो, और हम शयातीन वाला काम कर रहे हैं। नहीं, कोई भी शयातीन वाला काम नहीं कर सकता। अल्लाह का नेक बंदा जो भी होगा वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे अल्लाह की इबादत करने में खलल वाक़ हो। वाह तस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कोई ऐसा काम ना कीजिए जिसकी वजह से इत्तेहाद में इख्तिलाफ पड़ जाए। इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है कि हम अपने अकायद छोड़ देंगे, हम अपना दीन छोड़ देंगे, नहीं। जहां पर आप अपनी इबादत कीजिए, हमें अपनी इबादत करने के लिए। एक मुसलमान कहलाते हैं तो मुसलमान सब हैं, एक किताब है, एक कुरान है, एक पैगंबर है, उसके मानने वाले हैं। बकिया तो इख्तिलाफात जो हैं वो अपनी जगह पे छोड़ दीजिए आप, क्योंकि जिसको बख्शना है, जिसको बख्शवाना है वो कोई और नहीं है। ये कब्र में किसी की मौलाना रमजान नहीं जाएंगे, कोई दूसरा मौलवी नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? कोई किसी की कब्र में नहीं जाएगा। तो जब कोई किसी की कब्र में नहीं जाएगा तो कोई किसी को अच्छे अमल करने से कैसे रोक सकता है? क्योंकि अल्लाह ने कब्र ही तो रखी है जहां पर इंसान के अकायद का बदला यही तो दिया जाएगा, जिसपे इंसान के आमाल का बदला यही तो दिया जाएगा। और उसके बाद आखिरत में जाकर के हिसाब किताब होगा, फिर फैसला होगा कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में। ये इंसान के हाथ में तो है नहीं। तो जब इंसान के हाथ में नहीं है तो फिर आप सोचिए कितना कम आप लोग वो इंसान होगा जो किसी को इबादत करने से रोकेगा। मैं इसलिए बातें अर्ज कर रहा हूं कि ये मेरा दर्द है। देखिए आप कितने ऐसे हैं जो वहां से चले गए हैं, बाहर से देख करके चले गए हैं। माह रमजान में कोई जुमा पढ़ने के लिए आए और ना पढ़ पाए। ये तो हमारे यहाँ के मोमिन, मैं ये सलाम करता हूं कि जो अपनी जगह पर सोचते हैं कि मैं अपने बाहर से आए हुए मेहमानों को नमाज पढ़वा दूं। सोचिए बच्चे कितने अच्छे हैं कि जो मतलब 15 साल के अंदर के होंगे वो कहेंगे नहीं आप पढ़ लीजिए। अभी देखिएगा आप, जिन्हें चीजें फर्क करती हैं। तरबियत का पहलू अलग होता है, इत्तेहाद अलग होता है। तो ये चीजें क्या होती हैं? और ये जो जमात रखी गई है, जमात से मुराद ये जो हम नमाज जमात से पढ़ते हैं, ये अल्लाह के सामने खड़े होकर के यही तो बताते हैं परवरदिगारा, हम चाहे अमीर हों, गरीब हों, रोड पर रहने वाले हों, यहाँ पर रहने वाले हों, वहां पर रहने वाले, लेकिन जब हम सब खड़े होते थे एक ही सफ में खड़े होते हैं
एक जगह पर खड़े होते हैं। यहाँ पर कोई अमीर गरीब नहीं होता, अमीरों को कुर्सी आगे नहीं दी जाती, गरीबों को पीछे नहीं। जो जहां पर आए वो वहां पर क्या हो सकता है, बैठ सकता है। तो जब जो जहां पर बैठ सकता है तो नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि जब हम जमात में पढ़ेंगे, जमात के साथ नमाज अदा करेंगे, खड़े होंगे, तो फिर अल्लाह की नजर में कितने अजीम बंदे हैं, कितने अजीम बंदे हैं कि जो हम आकर के जमात में नमाज पढ़ते हैं, और उनसे अजीम वो अफराद हैं जो जमात के अदा कराने में मदद करते हैं। कभी आप देखिए, ईरान चले जाइए, इराक चले जाइए, अरबईन के मौके पर चले जाइए, आशूर के मौके पर चले जाइए, देखिए जो लोग सिक्योरिटी का काम करते हैं वो नमाज पढ़ते हैं। उस वक्त नहीं, वो बाद में अदा करते हैं, क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी ना दे तो आपकी सेफ्टी कैसे रहेगी, तो सवाब उनका ज्यादा है। अब इसी तरीके से बहुत सारे अफराद क्या है, जैसी जिसकी नीयत होगी वैसे ही उसका सवाब क्या होता जाएगा, मुरत्तब होता जाएगा, वैसे ही उसका सवाब बढ़ता जाएगा, वैसे ही उसके लिए अल्लाह के यहाँ अज़मतें बढ़ती जाएंगी, वैसे ही अल्लाह के यहाँ उसकी नजर में सारा सवाब क्या होता जाएगा, उसके नामे आमाल मरतेब होता जाएगा। तो जब नामे आमाल मरतेब होता जाएगा तो माह मुबारक रमजान में जो उम्मत वहदत है, हमें क्या करना चाहिए मेरे अजीजों, ये तो हमने उमूमियत के लिए कह दी। अब आइए खुसूसियत के लिए एक बात कहना चाहता हूं उन लोगों के लिए कि जो माह रमजान में अभी तक अपने घरों में बहुत सारे बहन भाई ऐसे जो सलाम दुआ नहीं करते। मौलाना नमदार उम्मत वहदत का तो खुतबा दे रहे हैं, इसको भी तो बताइए। जो भाई भाई से नहीं बोलता, बहन बहन से नहीं बोलते, माँ बाप औलाद से नहीं बोलते, औलाद माँ बाप से नहीं बोलती, जनो शोहर एक दूसरे से बात नहीं करते, क्या ये मौका नहीं है? बेहतरीन मौका है सिले रहमी का। रमजान सिले रहमी का बेहतरीन मौका है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यानी हम ऐसे मौके पर यानी सिले रहमी के बाप को खोल करके रखें, जहां इस्लाम ने यह हुक्म दिया अपने पड़ोसियों के साथ, चाहे वो पड़ोसी तुम्हारा गैर मुस्लिम हो, अच्छा बर्ताव करो। उसी घर के अंदर रह करके हम अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं करते, एक छत के नीचे ही? लेकिन हमारा आलम क्या है? देखिए मेरे अजीजों, मैं ये बात जनरल कह रहा हूं, किसी पर जाके चिपका ना दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये बात जनरल कह रहा हूं, उमूमियत के साथ कह रहा हूं, किसी खुसूसियत या पर्दे खास नहीं है, पर्दे वाहिद नहीं है कि जाकर के उसको चिपका दीजिएगा और मालूम किया अगले हफ्ते से वो जुमा पढ़ने के लिए छोड़ दे कि साहब मौलाना नमदा का खुतबा तो समझ नहीं आता, समझ नहीं आ रहा है। यानी ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं एहतियात की बुनियाद पर, क्योंकि मौलाना नमदार की बातें अच्छाई में नहीं बुराई में कन्वर्ट कर दी जाती है, जबकि मौलाना नमदार का मकसद अच्छाइयां पहुंचाना है। हमें क्या करना है? हमें सिले रहमी के बाप के लिए, अगर भाई दूर रहता है, जाइए शहर पहुंचा दीजिए, अफ्तार पहुंचा दीजिए, कुछ तोहफे तहायर देते जाइए कि भाई कोई बात नहीं, अल्लाह का महीना आया हुआ है, मैं सोचा हूं कि कुछ नहीं आपके लिए, भावच के लिए, बच्चों के लिए, भतीजी भतीजों के लिए ये मैं छोटा सा हदिया लेकर के कबूल कर लो। क्योंकि हदिया जो होता है कुलूब को जोड़ देता है, अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए कहा गया है हदिया दो, हदिया लो। यानी हम हदिया दीजिए और हम हदिया लीजिए। ये नहीं कि खाली देने का ही हुक्म है, लेने का भी हुक्म है, ताकि आप हदिया लीजिए। और ये माह रमजान बेहतरीन हदिया क्या है? बेहतरीन हदिया ये है माह रमजान में कि हम इबादतों में 4 चांद लगाएं। 4 चांद कैसे लग सकता है? चंद लम्हे की इबादत होती है अफ्तार में और नमाज में। कितने लम्हा का फर्क होता है? थोड़ी देर का। जब थोड़ी देर का फर्क होता है, यही थोड़ी देर अगर मैनेज कर लिए तो बहुत बड़े बड़े फसादात और फितनत को रोका जा सकता है, या नहीं? रोका जा सकता है। और जब ये फितने और फसादात को रोका जा सकता है तो क्या कहना, ये जितने भी अफराद बाहर अगर जा रहे हैं तो ये रोकेंगे, यानी हम इनको नमाज जमात से बाद में पढ़ा देंगे, जुम्मे की नहीं होगी, जोहर की हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इनके लिए मैं ऐलान करूं ताकि ये मोमिन अपने आप को तकलीफ में महसूस
ना करें। इतनी बात कहने के बाद सिले रहमी का जब हम बाप खोलते हैं तो हदिया लेकर के जाइए, तोहफा लेकर के जाइए, बेहतरीन मौका है सिले रहमी का। जब इस तरीके से आप करते जाएंगे तो अल्लाह जानते क्या कहता है, कहता है मेरे बंदे समेट दो इसके लिए जमीनों को, समेट दो, फासले बहुत ज्यादा थे, इसको करीब कर दो, इसको नजदीक कर दो, इसको और यदि बहुत उससे आप वो कीजिए कि समेट दो जमीनों को। जब जमीन समतेगी तो नतीजा क्या होगा, नतीजा यही होगा कि हमारे आमाल की सीमा जो होगी, वो जो हम तय करके जा रहे थे वो कम हो जाएगी, लेकिन जो आमाल है वो बढ़ जाएगा, जो गुनाह है वो सिमट जाएगा। तो अब जब अल्लाह इतना ज्यादा काम करना चाहता है, ऐसे मौके देना चाहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उम्मते वहदत के लिए। तो हमने ये बातें कह दी हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम सब यानी अगर किसी से तर्क ताल्लुक किए हुए हैं तो राबिता बरकरार कीजिए। हाँ, सही और गलत में कभी नहीं हो सकता, ईमानदार और बेईमानों में कोई तालमेल नहीं है। यानी इसीलिए कह रहा हूं ताकि सही और गलत की लड़ाई हमेशा रहेगी, मगर ये कि गलत अपनी गलतियों पर नादिम होकर के सच्चाई के लिए, सच्चे उमूर के अंजाम देने के लिए तैयार हो जाए। तो जब ये उमूर के लिए अंजाम दे तो वो गलत नहीं हो सकता। तौबा कर लेगा, तौबा का दरवाजा खुला है, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठा रहे और उसके बाद कहे साहब मौलाना लंदा ने खुतबा तो दिया मिलने के लिए, लेकिन वो आए नहीं उनसे मिलने के लिए, ऐसा नहीं है। समझ आ रहा है? हुक्म कहां पर है, जहां पर निदामत बराबर से हो, जहां पर यानी शर्मिंदगी एहसास जो जमीन बेदार कर रहा है बराबर से, सामने वाला भी पशेमान हो रहा है, इधर वाला भी पशेमान हो रहा है, साहब चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी गलती की माफी मांग लीजिए, अपनी गलती की, और एक बेहतरीन मौके पर चलिए, क्योंकि माह रमजान माह इबादत है, माह रहमत है। सही है? जब ये मौके हमारे पास हैं तो जाहिर सी बात है अफ्तारी का मौका, बस आखिरी बात, अफ्तारी का मौका जो हम यही कहते हैं कि साहब मौलाना साहब ने नमाज पहले पढ़ा दी तो हम पिनक गए, अफ्तार पहले करा दिया तो पिनक गए, नमाज दोनों पढ़ा दी साथ में तो पिनक गए, नमाज में फासला रख दिया तो पिनक गए। ये किस चीज में राजी रहोगे? और राजी रहना किसी एक इंसान के लिए नहीं है, जहां पर यानी इज्तिमा हो, जहां पर उम्मत हो, जहां पर अफराद हो, जहां पर लोग हो, इन लोगों के लिए जो ज्यादातर भलाई का रास्ता जाता है वो तय किया जाता है, वो चुना जाता है। 100% कहीं पर कोई रास्ता नहीं चुना जा सकता, लेकिन जहां पर अक्सरियत के लिए भलाई हो, मसलन हमारे यहां बहुत सारी जगहों पर हमने देखा, मुशाहिदा किया, यहां पर तो नहीं है कि साहब मगरिब की नमाज के बाद अफ्तार होता है, आज भी होता है। अफ्तार करने के बाद जरा सा वीडियो बनाइए और देखिए मगरिब की नमाज में जमात से कितने लोगों ने नमाज पढ़ी, और जब इशा की जमात पढ़ी तो कितने लोग हाजिर हैं। आधे भी नहीं है, शायद 2-3 सफ रह जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन यही 3-4 मिनट अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, इमाम से कहिए साहब वो दोनों नमाजें मिला करके पढ़ा दे, उस पर इत्मीनान से बैठिए, घंटा भर आराम से अपने मोमिन भाई के साथ बैठिए, अफ्तार कीजिए, देखिए नतीजा क्या था। 5 मिनट की बर्दाश्त कितने सवाब का हकदार बना रही है। अब अगर यहीं पर कोई पिनक जाए तो उसका पिनकना गैर मंतिकी है, गैर माकूल है, क्योंकि जहां पर सब अंजाम दे रहे वहां पर आप ही अंजाम दीजिए। हमारे 5वें इमाम मोहम्मद उनसे सवाल किया गया कि मौला रमजान में मैं क्या करूं, पहले नमाज है या पहले अफ्तार है? इमाम ने कहा पहले नमाज है, बाद में अफ्तार है।
लेकिन अगर तुम कहीं ऐसी जगह पर जाओ कि जहां पर यानी अफ्तार पहले हो नमाज बाद में हो, तो तुम अफ्तार पहले करना नमाज बाद में पढ़ना, वहां पर ये ना कहना कि हमारे नमाज पहले होती है। ये मैं हदीस बयान करूं, किसी को हवाला चाहिए ले लेगा। मौला कहते हैं अब वहां पर जाकर के अपनी ना थोपना। हमारे यहाँ क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम कहीं दूसरी जगह मसलन में अपने वतन पहुंच गया, वहां पर गए, हमने कहा अरे तुम लोग ये अफ्तार बैठ गए, जरा हमारे यहाँ नमाज पहले होती, चलो पहले सब नमाज पढ़ो। कहा नहीं, आप अपने यहाँ के जिम्मेदार अलग, लेकिन वहां पर जो चल रहा है सिस्टम, जो निजाम चल रहा है, उसको डिस्टर्ब ना कीजिए। ये मौलाना लंदा नहीं कह रहे हैं, पांचवें इमाम कह रहे हैं। और इसी से आपको मैसेज देना चाहता हूं कि माह रमजान में आप अपने किसी भी अमल से किसी भी इंसान को तकलीफ ना पहुंचाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु